Hello student, in today's segment we discuss about counter current mechanism, which is the most important mechanism to make urine highly concentrated or to make urinary filtrate highly concentrated. As you notice that birds and mammals are capable to excrete highly concentrated urine, and the basic reason behind concentration of urine is this phenomena, that is counter current mechanism. Before explaining this phenomena, first I here explain the term counter current. What do you mean by counter? Counter means opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है तो वी यूज टर्म काउंटर. को करंट व्हेन द फ्लूइड फ्लो इन सेम डायरेक्शन एंड करंट सिंपली इज फ्लो. तो काउंटर इज हियर द अपोजिट डायरेक्शन एंड फ्लो. करंट मीन्स फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो. जब किसी भी लूप के अंदर फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं देन वी यूज टर्म काउंटर करंट. क्लियर? दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले वाइटल रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन टू मेक यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड और मेक यूरिन हाईली हाइपरटोनिक. तो नाउ हाउ दिस फिनोमिना हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ ह्यूमन एंड इन केस ऑफ बर्ड्स. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इज shown by birds and mammals, and it is mainly operated in which type of neuron? In earlier segment we discussed about two type of nephron, cortical nephron and juxtamedullary nephron. So this is mainly shown by juxtamedullary nephron, which play a very vital role in conserving water to make urine highly hypertonic. Shown by birds and mammals, and this counter current mechanism works at two site या works at two place of nephron. First is vasa recta or vasa recti, और simply second one is loop of Henle. Loop of Henle में आपने पढ़ा था descending limb and ascending limb. Before going over this explanation, first I will draw the basic structure of nephron here. Now come over ultrastructure of nephron to explain counter current mechanism. This is the cortex zone and the inner is medulla zone. This is the cortex and this is the medulla zone. Clear? हमने simple ultrastructure nephron का draw किया था. This is Bowman capsule, capsular part, from where highly convoluted tube arise, and this is said to be PCT. This PCT ultimate lead to loop of Henle, that is descending limb. In medulla zone हमने पढ़ा था कि जो juxtamedullary nephron है उसमें loop of Henle बहुत लंबे होते हैं and they inserted in medullary pyramid, highly inserted, बहुत long medullary loop of Henle's होती हैं. This is the thin part and here the ascending limb get thickened, and then this ascending limb ultimate lead to again highly convoluted part, that is DCT, which is distally located away from origin. This is the collecting duct which show opening of approximate 6 to 10 nephrons, and ultimately it lead to duct of Bellini. Clear? This is the simplified diagram of nephron. Here this afferent artery carry nitrogenous rich blood which further branching further differentiated or divided into number of juxtaposing capillary network. These capillary network, anastomosing capillary network, is said to be glomerulus, which is the site of ultrafiltration. We already discussed in previous segment. This efferent artery further coiled around PCT, and that is said to be PTCN. यहाँ पे हम सिंपली PTCN एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेटेड इन वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली. तो सीधा हम चलते हैं दिस इफरेंट आर्टरी विच क्वाइल्ड अराउंड दिस पार्ट
that is loop of Henle's. This is loop of Henle, which is mainly located in medulla part. It form highly coiled loop around descending limb and ultimate ascending limb. इस तरह से बहुत ही हाईली कॉइल्ड फॉर्म में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ इफरेंट आर्टरी, दैट इज सेड टू बी वासा रेक्टा, विच फॉर्म अ लूप अराउंड दिस लूप ऑफ Henle. First of all, I labeled it. This is descending limb. This is ascending limb, thick part, and this is the thin part of ascending limb. And this structure is said to be loop of Henle. And this tubular extension, this capillary network around loop of Henle is said to be vasa recta. So this counter current mechanism operated around two zones. First zone is vasa recta and second zone is loop of Henle. तो कैसे ये दोनों पार्ट काउंटर करंट के थ्रू यूरिन को कंसंट्रेट, यूरिन को हाइपरटोनिक बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. अब आपको दिख रहा है कि दिस वासा रेक्टा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर. दो लूप है इसके अंदर इस तरह से. तो यदि मैं सिंपली यदि इसी को एनलार्ज करूं, आपको एक्सप्लेन करूं दिस वासा रेक्टा कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म, the site of counter current mechanism is first is vasa recta and second is loop of Henle. One by one हम इसको explain करेंगे. First come over vasa recta. Vasa recta is the blood capillary network, capillary or loop network around loop of Henle's. These are tubular capillary network. ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है. कुछ ऐसा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस तरह का, इस तरह का. क्लियर? यदि मैं सिंपली इसको ऐसा दिखाई, यदि मैं सिंपली यहाँ से इसको करूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इन लार्ज व्यू. यदि आपको दिखाऊँ सिंपली, ये रहा. क्लियर? अब उस स्ट्रक्चर पे जाने से पहले थोड़ा सा और बता दूं बेटा कि दिस इज द मेडुला जोन, दिस इज द आउटर मेडुला जोन, whereas this is the inner medulla zone. Clear? And the fluid present in this medulla zone is said to be medullary interstitium or interstitial fluid. आपको पता ही है these are tissue fluid कि हर एक कोई भी ऑर्गन है, कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसके चारों तरफ टिश्यू फ्लूइड होते हैं विच प्ले वेरी वाइटल रोल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ आयन और एक्सचेंज ऑफ एनी सब्सटेंस, एंड दैट फ्लूइड इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि सारा रोल इसी का है बेटा, तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा. और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी मेडुलरी इंटरस्टिशियम. The concentration of medullary interstitium play vital role in counter current mechanism or help in conservation of water to make urine highly concentrate. So this is the loop like structure. This is the loop of Henle which is surrounded by a vasa recta. So vasa recta is the tubular loop like structure of blood capillary which surround loop of Henle's. अब जो ये loop of Henle's दिख रही है बेटा, दे शो ग्रेट परमेबिलिटी की बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपको यदि मैं थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो अप्रॉक्सीमेट 65% इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली अंडरगो रीअब्जॉर्प्शन. वी ऑलरेडी डिस्कस इन सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा. और जो यदि मैं यहाँ पे सिंपली कहूँ कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है दैट इज़ हाईली परमेबल टू वाटर, इट शो मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड. अब यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि जो मेडलरी पिरामिड है इट इज़ रिच इन सोडियम एंड पोटेशियम आयन. ऑलरेडी इस फ्लूइड के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम आयन क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा, एज कंपेयर टू द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन
फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन दिस वसा रेक्टा। क्लियर। तो अब यहाँ पे बहुत तेजी से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, सोडियम पोटेशियम एंड मेनली क्लोराइड आयन, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। हेयर द मेजर रोल इज प्लेड बाय सोडियम एंड क्लोराइड आयन। क्लियर। अब this is the medullary interstitium which surround this simply कहूँ this is the vasa recta which is surrounded by medullary interstitium, and this medullary interstitium rich in sodium and potassium ion. This sodium and potassium chloride ion hurry up and rush inside the vasa recta. नाउ जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ब्लड का, तो लूप में यदि आप डायरेक्शन ऑफ फ्लो कंसीडर करें तो बेटा यहाँ ब्लड ऐसे आ रहा है, ये ब्लड ऐसे जा रहा है, तो हेयर द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इज दिस एंड दिस। तो यहाँ पे फ्लो जो है लिक्विड का वो कैसा है बेटा, अपोजिट, दैट्स व्हाई वी यूज टर्म काउंटर करंट। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन बहुत तेजी से एंटर कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगेन सोडियम एंड क्लोराइड आयन वापस से कहाँ जा रहे हैं, मेडलरी इंटरस्टिशियम में। मतलब यहाँ पे जो भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर की, वापस से यदि मैं सिंपली यदि यहाँ पे डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँ कि सोडियम and chloride ion start diffusing from medullary interstitium to vasa recta of this loop। जो लूप कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, और जो लूप ऊपर की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें वापस से सोडियम एंड पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे, आउटसाइड, फ्लो आउटसाइड। तो आप क्या देख रहे हैं कि भले ही ये सोडियम पोटेशियम आयन मूव कर रहे हैं इनसाइड आउटसाइड, बट दीज आयन रिमेन इन मेडुला, रिमेन इन मेडलरी इंटरस्टिशियम, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडलरी इंटरस्टिशियम इज वेरी हाई। क्लियर। अब यदि ये कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो ये किस चीज़ को अलाउ करेगा कि जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा, आप देख रहे हैं कि द मेडलरी इंटरस्टिशियम हेयर बिहेव एज अ हाइपरटोनिक, whereas the blood remained in vasa recta is hypotonic, so water rush outside. Again यहाँ पे मैं दो टर्म यूज करूंगी, osmolarity and osmolality. This osmolarity is defined as the amount of particle or amount of ion present in per liter of water. Here the osmolarity of medullary interstitium play very major role कि जितना ज़्यादा सोडियम एंड क्लोराइड आयन डिफ्यूज होते जाएंगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, इट बिकम हाइपरटोनिक, एंड जितना हाइपरटोनिक आएगा ब्लड क्या हो जाएगा, एक्सॉस्मोसिस टेक प्लेस, ब्लड फ्रॉम वाटर फ्रॉम वासा रेक्टा मूव आउटसाइड। एंड अब बहुत तेजी से आप क्या देख रहे हैं कि वाटर कहाँ मूव करता जा रहा है, मेडलरी इंटरस्टिशियम में, और यहाँ पे यदि आप देखें कि फिर फर्दर वाटर का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो गया, कम, तो अब जो यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, वासा रेक्टा में, जो यूरिन को क्या बनाएगा, कंसंट्रेट। तो फर्स्ट कम ओवर दिस पॉइंट, हाउ काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेटेड इन वासा रेक्टा इन दिस डिसेंडिंग लूप and this is ascending loop of vasa recta. This is the descending loop of vasa recta. हालांकि we don't use term descending and ascending loop here. ये जस्ट समझाने के लिए है कि जो लूप इधर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन के ऊपर मेजर फोकस करना है। descending loop of vasa recta which is towards the inner part of medulla, and this is the outer part, this is located in outer part of medulla. Sodium and chloride ion diffuse inside the loop of vasa recta which is towards inner medulla, whereas sodium and chloride ions diffuse outside the loop of vasa recta towards outer medulla,
एंड दिस इज सेड टू बी साइक्लिक मूवमेंट ऑफ आयन, कि पहले सोडियम अंदर जा रहे हैं फिर सोडियम क्लोराइड बाहर आ रहे हैं. दिस लीड टू साइक्लिक मूवमेंट of sodium and chloride ions into medullary interstitium, generate concentration gradient. अब यदि सिंपली यदि मैं यहाँ पे कहूँ कि बहुत तेज़ी से सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड आयन डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो इन केस ऑफ मेडुला द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल आयंस इंक्रीजेस इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, सो द ऑस्मोलैलिटी ऑफ मेडुला इज कंपैरेटिवली मोर एज कंपेयर टू दिस जोन, कॉर्टेक्स जोन. तो यदि हम सिंपली कहें कि इन कॉर्टेक्स जोन द कंसंट्रेशन इज वेरी लो, अप्रॉक्सीमेट 3. यदि ऑस्मोलैलिटी हम काउंट करें, osmolality, how can you define osmolality? Osmolality is defined as amount of ions or substance, or simply यदि कहूँ तो particles in 1 kg of water. Here water behave as a solvent. Clear? The unit of osmolality is the most important for your NET, that is milliosmol per kg. Milliosmol per kg. Milliosmol per kg. Clear? This is the unit of osmolality. And how can you define osmolarity? Is the amount of ion substance or particle in 1 liter of water or 1 liter of solvent. जब हम 1 लीटर में देखते हैं आयंस क्या अमाउंट, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं osmolarity और osmolality, जहाँ पे हम पार्टिकल्स के और आयंस का कंपोजिशन किस में देख रहे हैं, 1 kg ऑफ वाटर में. तो जनरली यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम और कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम की जो कंपोजिशन कैलकुलेट की जाती है, that is calculated in osmolality, and the unit is milliosmol per kg. Here the concentration of cortical interstitium, the fluid in cortex region of kidney, is 300 milliosmol per kg. जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं मेडुला में, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस ड्यू टू काउंटर करंट, कि बहुत तेजी से जो ब्लड मूव कर रहा है, काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उतनी तेजी से आयन डिफ्यूज होते जा रहे हैं. कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, दैट इज इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम. तो इन दिस जोन द अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी इज milliosmol per kg. और डाउन यदि आप जाते हैं तो इट इज अप्रॉक्सीमेट 900 मॉसमोल कह सकते हैं या मिलीऑस्मोल कह सकते हैं आप पर केजी. और यदि डीपर जाते हैं, जितना लूप ऑफ हेनली लॉन्गर होगा उतना इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन हाई होगा, और जितना हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन बाहर होगा वो यूरिन में से वाटर को उतनी तेजी से बाहर की तरफ खींचेगा एंड यूरिन बिकम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. तो मोर इज द लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. दिस इज अप्रॉक्सीमेट 1200 milliosmol per kg. यदि मैं सिंपली यदि कहूँ कि कॉर्टिकल जोन में ऑस्मोलैरिटी कितनी है बेटा, 300 मिलीमॉस्मोल, और यदि हम आउटर मेडुला जोन में देखते हैं तो 600 to 900 मॉस्मोल. और बिल्कुल डीपर जोन में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, डीपर जोन, जितना हम मेडुला में डीपर जाएंगे, जितना लूप ऑफ हेनली लॉन्गर होगा उतनी तेजी से आयन डिफ्यूज होंगे. कहाँ? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, एंड द मीडियम बिकम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और हाईली हाइपरटोनिक. अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो वाटर स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउटसाइड, बहुत तेज़ी से वाटर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे आउटसाइड. तो अब आप यदि मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराऊँ कि पीसीटी के अंदर 65 टू मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस.
आयंस की रीअब्जॉर्प्शन हो गई। तो जो यूरिनरी फिल्ट्रेट कहाँ पहुंचा बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब में, वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। कैसा है, हाइपोटोनिक। और बाहर कंसंट्रेशन कैसी है, हाइपरटोनिक। दैट्स व्हाई वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, दैट इज लो ऑस्मोलैलिटी टू हाई ऑस्मोलैलिटी। द मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम, राइट डाउन, movement of water from low osmolality to high osmolality. Here osmolality is the composition or amount of substance in per kg of water. So this is the, again I recap here, vasa recta. Why it is said to be counter current? Because here the direction of flow of blood is opposite direction में move कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि the flow of direction of blood is opposite, that's why we use term counter current. This allows cyclic movement of ions. जो आयन डिफ्यूज होके गए वासा रेक्टा में, वो डिफ्यूज होके बाहर आ गए। there is a no net movement of ions कि वापस से आयंस कहाँ आ रहे हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ रहे हैं। दिस मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला जोन। और जितनी ज़्यादा कॉर्टेक्स जोन में ऑस्मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, उतनी तेज़ी से वाटर डिफ्यूज होके कहाँ आएंगे, इंटरस्टिशियम में। और यूरिनरी फिल्ट्रेट, जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट विच फ्लो इन लूप ऑफ हेनली बिकम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। दिस वासा रेक्टा मेंटेन ऑस्मोलैलिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकेंड काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑपरेटेड इन दिस लूप ऑफ हेनली, दैट इज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। तो हाउ यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड ड्यू टू काउंटर फ्लो ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन लूप ऑफ हेनली। तो नाउ कम ओवर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हाउ दिस लूप ऑफ हेनली प्ले मेजर रोल इन कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब विच लीड टू DCT and ultimate to collecting duct. Now the concentration and the osmolality of medullary interstitium is 1200 milliosmol per kg. This is the osmolarity of medullary interstitium. Clear? Medullary interstitium. Now the filtrate, nephric filtrate flow in this direction in descending limb and in this direction in ascending limb. That's why we use term counter current. जैसे आपने वासा रेक्टा में देखा कि जो ब्लड है वो इसमें नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। दैट्स वाई वी यूज काउंटर करंट। अगेन डिसेंडिंग लिम्ब में नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है बेटा, डाउनवर्ड्स। और असेंडिंग लिम्ब में कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, दैट इज टुवर्ड्स मेडुला एंड अवे फ्रॉम मेडुला, दैट इज टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। दैट्स वाई वी यूज टर्म काउंटर करंट। तो होप सो आपको काउंटर करंट सिस्टम तो क्लियर हो गया होगा। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कहीं पे भी कि हमारे नेफ्रॉन में नेम एनी साइट वेयर काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेटेड, तो यू कैन राइट वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनली। इन वासा रेक्टा द फ्लो, ब्लड फ्लो डायरेक्शन इज काउंटर करंट अपोजिट as possible you notice in loop of Henle. Now the concentration of medullary interstitium is very high. The fluid nephric filtrate present in this descending limb is hypotonic. The inner medium is hypotonic, comparatively hypotonic, or you can call low osmolality. और अभी अभी मैंने आपको की पॉइंट बताया, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो ऑस्मोलैलिटी टू हाई ऑस्मोलैलिटी, दैट इज हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन। और आपको पता भी है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है इट इज हाईली परमेएबल टू वाटर, दैट्स व्हाई वाटर स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउटसाइड, वाटर स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउटसाइड। तो आप क्या देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से वाटर कहाँ डिफ्यूज़ हो रहा है, आउटसाइड डिफ्यूज़ हो रहा है। तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन मेडुलरी पिरामिड का ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। दिस फ्लो ऑपरेटेड टिल आइसोटोनिक कंसंट्रेशन एस्टेब्लिशेस, बट इट इज़ नॉट इन रियल, क्योंकि यदि आइसोटोनिक हो जाएगा तो देर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस। तो आप देख रहे हैं कि वाटर बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होकर डिसेंडिंग लिम्ब में कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो अब जो ये है ascending limb, this is the ascending limb which is impervious to water but highly permeable to ions. तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड आयन
NaCl diffusing outside along with, this is the thin part of ascending limb, thin part, this is the thick part and this is the thin part. Urea diffuses outside. हमने पढ़ा था यूरिया इज आप कह सकते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस था कि कंप्लीट यूरिया एलिमिनेट नहीं होता, एक्सक्रीट आउट नहीं होता, कुछ यूरिया रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है. इट नॉट बिलोंग टू जीरो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस एज यू नोटिस हिप्यूरिक एसिड और क्रिटिनाइन. लेकिन यूरिया जो है इट बिलोंग टू लेस थ्रेशोल्ड सब्सटेंस और लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस. तो दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब और थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब यूरिया डिफ्यूजेज आउटसाइड. तो यूरिया जैसे जैसे डिफ्यूज होगा अगेन ऑस्मोलैलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, विच ड्रैग वाटर आउटसाइड एंड मेक यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. तो आप देख रहे हैं कि इस जोन में यूरिया डिफ्यूज हो रहा है और दिस यूरिया ऑल्सो मेंटेन हाई ऑस्मोलैलिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम. नाउ कम ओवर collecting duct. This ascending limb lead to DCT, DCT lead to collecting duct. Under the influence of collecting duct, you notice that collecting duct generally work under the influence of ADH, anti-diuretic hormone. अब आप देख रहे हैं कि ड्यू टू यूरिया यहाँ की ऑस्मोलैलिटी क्या है बेटा, हाई है. सो वाटर स्टार्ट रशिंग आउटसाइड, वाटर स्टार्ट रशिंग आउटसाइड एंड मेक यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. तो जितना ज़्यादा मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैलिटी होगी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, उतनी तेजी से वाटर डिफ्यूज होगा आउटसाइड. अगेन रिकैप हियर, व्हाई वी यूज टर्म काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन फ्लो व्हेन फ्लूइड, whether the fluid is water, nephric filtrate or blood, even direction is opposite flow direction, then we use term counter current. Vasa recta play major role in maintenance of that allows cyclic movement of ion and maintain the osmolality of medullary interstitium. As the medullary interstitium become hypertonic, it withdraw water from loop of Henle's and this make urine highly concentrated. तो जितना ज़्यादा collecting duct डीपर होगा, डीपरली situated in medulla, उतनी तेजी से water diffuse होगा. तो as collecting duct is more deeper in medulla, highly concentrated urine is passed out. So this counter current mechanism help in conservation of water, maintenance of water level in body fluid, and most important conserve water to eliminate nitrogenous waste with limited wastage of water, that urine become highly concentrated. Again अब आप देख रहे हैं कि मेजर जो ऑस्मोलैलिटी है उसके लिए कौन से 3 आयन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिया. नाउ द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट डाउन हियर द की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट, you must focus. Now the second is the substance responsible for maintenance of osmolality in medullary interstitium. This is the important question for your NET. Interstitium are 2 ions, that is sodium ion, chloride ion and small amount of urea, and this urea diffuses from, you write down, thin limb of ascending loop, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब. और असेंडिंग लिम्ब के किस पार्ट से यूरिया डिफ्यूज हो रहा है, थिन से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से वाटर डिफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी सी क्या हो गई, लो हो गई. तो ऑस्मोलैलिटी मेंटेन रखनी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, तो यूरिया ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैलिटी इन मेडुलरी
मेडुलरी इंटरस्टिशियम और मेडुलरी पिरामिड। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि जिसका लूप ऑफ हेनले जितना डीपर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम डीपर जा रहे हैं उतनी तेज़ी से कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कॉर्टेक्स में 300 मॉस मोल पर केजी, देन 600 मॉस मोल पर केजी, देन 900 मॉस मोल पर केजी एंड लास्ट 1200 मॉस मोल पर केजी। तो होप सो आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लियर होगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। Why it is said to be counter current? Because direction of flow of fluid is opposite. It is operated at two places of nephron. First one is vasa recta and second is loop of Henle. थर्ड आपको याद रखना है द ऑस्मोलैलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पे डेविएट होता है, कितना होता है। तो द कॉर्टिकल इन कॉर्टेक्स रीजन द इंटरस्टिशियल कंसंट्रेशन इज कॉम्पेरेटिवली वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू मेडुला। तो जो नेफ्रॉन जितने डीपली सिचुएटेड होंगे वो उतना ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट कराएंगे। तो जो आपसे पूछा जाए कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, विच नेफ्रॉन प्ले मेजर रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, you must write the answer juxtamedullary nephron with very long loop of Henle. होप सो आपको लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीनल मैकेनिज्म, हाउ रीनल किडनी फंक्शन इज रेगुलेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। थैंक यू सो मच।